نہ میں، نہ آپ، اور نہ بشرا انصاری. بہت دیر کرتے لفٹ لینے میں کون یقین کرے. میں بات کر رہا تھا اتنے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں بدلا. بدلا تو ہے. کیا بدلا؟ بہت سے خاوند بدلے ہیں. کیا مطلب بہت سے خاوند بدلے؟ اکثر محفلوں میں خواتین کو گاتے ہوئے سنتی ہوں, بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. اس طرح تو ٹیلی ویژن بھی بدل گیا. ٹیلی ویژن کس طرح بدل گیا؟ ٹیلی ویژن والوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول. بہت اچھی بات. ویسے میرا خیال ہے ٹیلی ویژن والوں کو چاہیے کہ ایک ایسا پروگرام بھی شروع کریں جو ان لوگوں کے لیے ہو جو سن بھی سکتے ہوں اور بول بھی سکتے ہیں. بہت مشکل خواہش ہے. ایک بحث چلی آئی ہے بہت دنوں سے کہ ہم لوگ ترقی یافتہ ہیں یا ترقی پذیر. ترقی یافتہ بڑی آسانی سے کہہ دیا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم میں سے آدھے تو ایوارڈ یافتہ ہیں اور آدھے جزا یافتہ. آدھے ایوارڈ یافتہ اور آدھے جزا یافتہ. جزا یافتہ سے کیا مراد؟ جزا یافتہ سے مراد جزا یافتہ. جزا یافتہ. چلیں جزا یافتہ. تو آپ کا مطلب ہے کہ اگر ہم ترقی پذیر ہوتے تو ہم میں سے آدھے جزا پذیر اور آدھے ایوارڈ پذیر. جی. تو یہ بتائیں یہ شو ٹائم کیا ہے؟ شو ٹائم جیسے پروگرام یہ لوگ پہلے بھی دیکھتے. الف نون، ٹال مٹول، سچ گپ، بلیلا، 50-50، شوشا، چینل 2، افراتفری، کلیاں، 7 رنگ وغیرہ. اچھا. تو یہ پروگرام کتنے عرصے تک کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ پروگرام ہوتے ہیں 1 سال کے لیے, مگر اپنی اچھی کارکردگی کی وجہ سے 3 مہینے میں یا اس سے بہت پہلے مکمل ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے ایک مشورہ دوں. ضرور. اس طرح کے پروگراموں کو 5 سالہ ہونا چاہیے. اس طرح کے پروگراموں کو 5 سالہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ایک تو 5 سالہ پروگرام بند نہیں ہوتے, اور دوسرے یہ کہ 5 سالہ پروگرام کو ہمارے یہاں مکمل ہونے میں 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں. بلکہ زیادہ. ایک سوال اور کر سکتے ہیں؟ 2 سوال. یہ بتائیں کہ یہ بجٹ میں ہر سال جو غریبوں کا اتنا تیل نکلتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ ہر سال بجٹ میں ہمارے یہاں جو غریبوں کا تیل نکلتا ہے وہ ہمارے یہاں کے امیروں کا گنجا پن دور کرنے کے کام آتا ہے. میرا خیال ہے میں چلتی ہوں کیونکہ ٹیلی ویژن پر کھانے کی ترکیب آ رہی ہے. ابھی آتی. ٹیلی ویژن پر کھانے کی ترکیب. السلام علیکم عزیز بہنوں. بگھارے بینگن بنانے کی ترکیب کے ساتھ بیگم یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بینگن چونکہ بہت سستی سی سبزی ہے, اس کے لیے اتنا اچھا ایپرن خراب ہو جائے گا نا, ایک سائڈ پر رکھ دیجیے. دوسری بات یہ کہ بہنوں ترکاریوں کی جیسا کہ آپ جانتی ہیں بہت سی قسمیں ہوتی ہیں, لیکن بینگن کو سیاسی ترکاری کہا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینگن کو سیاسی ترکاری کیوں کہا جاتا ہے, تو اس کی وجہ جاننے کے لیے آپ کو ایک تھالی کی ضرورت ہوگی اور کچھ بینگنوں کی. یہ دیکھیے, بینگنوں کو تھالی میں جس طرف بھی جگہ ملے گی اسی طرف چلے جائیں. دیکھا آپ نے؟ اب تو آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ انہیں سیاسی ترکاری کیوں کہا جاتا ہے. یقیناً. اور بینگن بہت سستے ملتے ہیں, اس سے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ بگھارے بینگن کس طرح بتاتے ہیں. سب سے پہلے آپ تمام بینگنوں سے ہاتھ دھو لیں. میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ بینگنوں سے آپ نے ہاتھ دھوئے اچھی طرح, بہت اچھی طرح سے ہاتھ آپ نے دھو لیے بینگنوں سے. ٹھیک ہے. اب اس طرح کیجئے کہ آپ 1 کلو بینگن لیجئے. باتوں باتوں میں مجھے خیال آیا کہ بہت سی بہنیں بینگن کو بیگن بھی کہتی ہیں, اور انہیں پانی میں جلدی جلدی ابال کر لبنان میں مسلمانوں پر کیے گئے ظلم کا بدلہ اس بیچاری ترکاری سے نکال لی. اور اس ترکاری کی اس ڈش کو بیچارے بیگن کا بھرتا بھی کہا جاتا ہے. خیر, ہم تو اس وقت یہاں آئے ہیں بگھارے بینگن کی ترکیب کے لیے, تو میں آپ کو بتاتی ہوں. کاپی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے اور ذرا دھیان سے لکھیے. بگھارے بینگن بنانے کے لیے آپ کو 1 کلو بینگن کی ضرورت ہے اور 1 عدد ٹیلی فون کی. وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ کیجیے کہ بینگنوں کو یہاں رکھا دھو کر, اور چھری لی, اور اس کے علاوہ جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ لکھتی جائیے. وہ ہے بینگن بنانے کے لیے نمک, مرچ وغیرہ,
और घी और बहनों 1 मिनट आप मुझे मैं ज़रा जहन से निकल गया, अपने एक हैदराबादी दोस्त को फ़ोन करके अभी आपसे बात करती हूँ। हेलो, हमीदा है ना? हाँ हमीदा, नंबर मिल गया आपका। हमीदा, मैं मिसेस यजदानी बोल रही हूँ, कैसी हो? ठीक हो ना? परसों कहाँ थी तुम? मैं और यजदू आए थे, तुम तो घर पर ही नहीं मिलती। हाँ, बशीर और कफील दोनों बेचारे इतने बीमार हैं, बस हर वक्त जुकाम रहता है उन्हें। ओहो हाँ, मैंने दरअसल फोन इसलिए किया था कि वो बघारे बैंगन बनाने की तरकीब मुझे तुमसे पूछना थी। तुम्हें नहीं मालूम? मम्मी को मालूम है? अच्छा, मम्मी से बात करवा दो। मम्मी गई नहीं है? पिंडी पिंडी का कोई नंबर नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज़। माफ़ कीजिएगा बहनों, हमीदा की मम्मी पिंडी गई हुई हैं और बघारे बैंगन की तरकीब उन्हीं को मालूम है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग हल तो निकाल ही लेते हैं ना हर चीज़ का। वैसे भी मायूसी गुनाह है। अब आप कॉपी पेंसिल लीजिए, मैं आपको सबसे आसान तरकीब बताने वाली हूँ। बघारे बैंगन अगर आपके बनाने हो और आपको तरकीब समझ में ना आ रही हो तो आप अपनी किसी भी हैदराबादी दोस्त को टेलीफोन कीजिए और उससे बघारे बैंगन बनाने की तरकीब पूछ लीजिए। चाहे हाथों से खाएं, चाहे दांतों से खाएं, सुबह शाम CSP लगाएं, चाहे अपने घर दिखाएं, चाहे दफ्तर में खाएं, सुबह शाम CSP लगाएं, CSP Retinova toothpaste। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आमना सामना, ये दो बहनों के नाम नहीं है, ये हमारे प्रोग्राम का नाम है। इस प्रोग्राम की खास बात ये भी है कि ये आपकी खिदमत में जूं का तूं पेश किया जाता है, यानी बगैर कटे हुए। जिस तरह रिकॉर्ड हो रहा है उसी तरह आप इसे देखेंगे। आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मोहतरम ने शब्बीर ए साहब। आप किसी के मोहताज नहीं हैं। एक्सक्यूज मी, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो मैंने क्या कहा? आपने कहा मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। इंसान गलती का पुतला है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नाजरीन, हमारे मेहमान की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। चंद महीने पहले आपको एक सरकारी इदारे से उनवानी के सिलसिले में हटा दिया गया, मगर अल्लाह का करम कि आज आप 8-9 मिलों के मालिक हैं और हमारे यहाँ एक बड़े सनतकार की हैसियत से नुमूदार हैं। सवालात के लिए हमने जहमत दी है बेगम अंसारी को। बेगम अंसारी गैर समाजी कारकुन होने के साथ साथ अदब के मैदान में भी हाथ चलाती रहती है। आपके अफसानों का मजमूआ अभी अभी बाजार से उठा है, उसका नाम था दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे। बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुंचे। माशाल्लाह। मगर अफसानों के मजमूए का नाम क्या था बेगम साहब? सूरत सवाल पूछा है आपने। निगाहों की जुबान तक। निगाहों की जुबान तक आपके मजमूए का नाम था। आपके साथ बैठे हैं, साथ कहाँ है, काफी परे बैठे हैं। आपसे परे बैठे हैं किदवाई साहब, जाना पहचाना नाम, मशहूर सहाफ़ी, जर्नलिज्म में मैट्रिक किया ओह लवली लवली, और फिर मैदान सहाफत में आ गए। माशाल्लाह। किदवाई साहब के साथ तशरीफ रखते हैं इसाक साहब। 40 बरस से एक ही पेशे में हैं और आजकल एक कंपनी के चेयरमैन भी हैं। आपके बारे में एक बात और बता दूं कि आप ज़्यादातर सरकारी मुलाजिमों को बिजनेस की तरफ खींच के ले जाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं दावत दूंगा बेगम अंसारी को कि मेहमान से सवालात करें। अच्छा जी, आप सबसे पहले ये बताइए मेरे पहले शेरी मजमूए का क्या नाम था? बेगम अंसारी, मेरे ख्याल में आप कुछ गलतफहमी में हैं। नीलाम घर में आपको कल जाना है, ये आमना सामना है। आप सवाल मेहमान से पूछिए। तो गोया आज 15वीं है। जी हाँ। जभी तो कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। मेरा हुआ यूं कि हमारे यहाँ कल कुछ मेहमान आए थे, वो लेकर बैठ गए किस्से बदउनवानी करने वालों के। बस फिर क्या था, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। ये जू का तू जा रहा है, प्लीज जू का तू जा रहा है। देखिए, ये प्रोग्राम जूं का तू जा रहा है बेगम साहिबा, तो सवाल ज़रा माकूल होने चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए आपने कितने अरसे से परवीन को टेलीफोन नहीं किया? जाती सवाल, ये पर्सनल, व्हाई शी इज गेटिंग पर्सनल विद मी? ये जाती सवाल हो रहे हैं यहाँ पर। बेगम साहिबा, मैंने आपसे पहले भी कहा था
कि ज़ाती सवालों से परहेज करना अरे साहब ये जाती ये तो अच्छा खासा बदजाती सवाल था। है। मेरे ख्याल में कदाई साहब आप सवाल पूछिए। बेगम अंसारी से जी नहीं, मेहमान से। इनका नाम क्या? इनका नाम मैं बताता हूँ आपको। इनका नाम है सुनिए सुनिए जी। मैं लास्ट टाइम फॉर द लास्ट टाइम जी। मैं आपको और आपकी टीम को बता रहा हूँ, मेरा नाम है MNA शब्बीर ए। अब मत पूछिएगा। जी जी, MNA शब्बीर ए। जी जी। अच्छा ये बताइए कि आपके हल्के का क्या नंबर है? 16.5 16.5। नहीं नहीं, इस हल्के की बात नहीं कर रहा मैं, MNA के हल्के की बात कर रहा हूँ। आप गलत हो, यू मिस इन्फॉर्म। मैं MNA वो वाला नहीं हूँ, मैं हूँ MNA, मियाँ नसीम अहमद शब्बीर ए। शब्बीर ए से क्या मतलब है आप? शबीरा। माशाल्लाह। क्या अच्छा अच्छा, शबीरा। यानी मियाँ नसीम अहमद शबीरा। तो वाले साहब किस नंबर पे आए? जाती सवाल कर रहे हैं, फिर अगेन पर्सनल क्वेश्चन। वैसे कदवाई साहब मेरे ख्याल में ज़ाती सवालों से गुरेज कर। सभी साहब जाती सवाल हो रहे हैं इनसे। तो चलिए ये बता दें कि आपको मुलाजमत से क्यों अलहदा किया गया, ये बताएं बस। मुझे मालूम है बाय गॉड, रिश्वत की वजह से निकाले गए हैं। मेरे ख्याल में मेहमान से सवाल किया गया था। मोहब्बत मुझे इन जवानों से है। गप्पो। मेरे ख्याल में आप प्लीज इसहाक साहब आप कोई सवाल करें। जी मैं अर्ज करना चाह रहा था कि मेहमान खुसूसी की शख्सियत वाकई किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यानी आपने जिस जाफिशानी से हर महकमे में काम किया उसको सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बेशक बेशक। दुनिया के अगर किसी मुल्क में भी आप होते तो फौरन फांसी पे चढ़ा दिए गए होते। जू का तू जा रहा है, समझा दीजिए, जू का तू जा रहा है। बेगम साहिबा प्रोग्राम जूं का तू जा रहा है। यानी ईमानदारी आपका रास्ता रहा है। यार ये तो सबकी तरफ हो जाता है, सबकी तरफ हो जाता है। मैं आपसे कह रही हूँ ये रिश्वत लेकर खा गए हैं। देखिए मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, जरा 2 मिनट रुक जाइए, पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए साहब मैं इनकी सर्विस के आदाब शुमार लिख के रहा। देखिए माशाअल्लाह। यानी आपकी ईमानदारी का ये आलम है। पहले आप सन 1958 में निकाले गए और सन 1962 में दोबारा मुलाजमत पर आ गए। मुबारक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सन 64 में निकाले गए और फिर 66 में आ गए, फिर 72 में निकाले गए और 73 में आ गए, और फिर साहब 80 में ऐसे निकाले गए कि अभी तक निकाले हुए। यानी मेरा कहने का मकसद और मतलब ये था कि अगर ईमानदार न होते तो बार बार सर्विस पे कैसे आते, और आखिरी मर्तबा किस तरह निकाले गए हैं। जिस तरह परवीन के घर से धक्के देकर निकाले गए थे। जू का तू जा रहा है, मैं आपसे जूं बता का रहा हूँ। तू जा रहा है। नाजरीन अरे छोड़िए आप, क्या नाजरीन नाजरीन की रट लगा रखी है आपने 1 घंटे से। क्या आप रिश्वत की बातें कर रहे हैं? कौन है जो रिश्वत नहीं लेता? आप में से बताइए, 4 अशाज बैठे हुए यहाँ पर, कौन है ऐसा जो मुझसे बात कर सके? अरे आप लोग तो बदनसीब लोग हैं। मैं क्या क्या आप लोगों के लिए प्रोग्राम बना के घर से चला था। मैंने सोचा था प्रोग्राम आमिना सामिना में जो मुझसे अच्छा सवाल करेगा मैं उसको कार की चाबी इनाम में दूंगा। मगर एक सवाल बाकी है मेरा। अरे आप तो ऐसा बात मत है कीजिए, कि मेरा नाम बात आपको पूरा नहीं या याद। अनवर भाई आपने तो हमें इसी मकसद के लिए दावत दी थी, यहाँ आए और सवाल करें। तो मैं ये कह रही थी कि आप बेफिक्र रहें, प्रोग्राम का वक्त तो बहुत लंबा है, अभी भी और टाइम बचा हुआ है। तो मैंने ऐसी पुरनूर शख्सियत कहीं नहीं देखी, इस कदर बाअसर शख्सियत, इस कदर मैं तो आदाद शुमार जनाब, की जवाब ही बजाय नहीं है आपकी पर्सनालिटी का। एक मिनट मगर शबीरा आप चुप रहिए। रिपीट। मैं ये कह रही थी कि इस कदर पुरनूर चेहरा, वैसे रंग क्या है गाड़ी का? ब्राउन। बहुत उम्दा, इस कदर पुरनूर चेहरा मैंने कहीं नहीं देखा। हम भी वरना एक आधा मेरी- सवाल- अरे मेरी देखिए, शख्सियत- मैं- रहने दीजिए, आप साइकिल पे चले इस जाइए। तरह के जो प्रोग्राम होते ये हैं कह रही थी उनका अंजाम ऐसा ही होता है, मगर वो आप तक पहुंचता बात नहीं। पूरी हमारी क्या? अरे मतलब आपकी खुशनसीबी कि आपने ये अंजाम देखा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। देखिए खुदा। मैं तो ये कह रही थी। अगर आप अपने बच्चे की जिंदगी चाहते हैं तो आज ही से 5 बीमारियों से बचाव के टीके लगवाइए। ये बीमारियां हैं रिश्वत, चर्स, हेरोइन, बेईमानी और खुशामद। सच्चा पाकिस्तानी बनने के लिए इन बीमारियों के टीके बचपन ही में लगवा लें, क्योंकि यहाँ तशन्नुद से इंसान बच सकता है मगर रिश्वत से नहीं। सरकारी और नीम सरकारी इदारों से परहेज कीजिए। अच्छा इश्तहार भी कभी कभी क्या क्या खराब चीजें खिलवा देता है। और कभी कभी खराब इश्तहार क्या क्या अच्छी चीजें दिखला देता है। मेरे ख्याल में कोई आ रहा है। मोइन अख्तर आइए। लीजिए जनाब, सब उल्टा हो गया। वो कैसे? एक औरत के बराबर 2 मर्द। असल में बात यह है, औरत और मर्द एक गाड़ी के 2 पहिए। लेकिन जनाब गाड़ी के तो 4 पहिए होते हैं। जी हाँ, बाकी 2 पहिया औरत के माँ बाप होते हैं जिनके बगैर दुनिया की कोई गाड़ी नहीं चलती।
मत बनो ज्यादा, मत बनो ठनो, जहर लग रही हो मुझे तुम। क्या हो गया आज आपको? मेरा खोपड़ा फिर गया है, दिमाग मेरा पिघल गया है एकदम। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती, तुम्हारी अम्मा ने मेरी जिंदगी खराब की हुई है, हर जगह पीछे लग जाती है जाने के लिए, पिन से बतूता कहीं की। वो तो वो बेचारे घर में बैठ के क्या करे अब? मैं तो उनको मना नहीं कर सकती, उनको तो सिर्फ गाड़ी में बैठने का शौक है। अरे बकवास मत करो, तुम्हारी अम्मा को गाड़ी में बैठने का शौक है, 2 मिनट हम अकेले नहीं रह सकते। हर जगह वो पीछे लगी रहती है, हर जगह चलने के लिए तैयार हो जाती है, किसी जगह जाने के लिए वो तैयार नहीं होती है। इतनी जिद करता हूँ मैं अम्मा से। अरे बेटा ज्यादा इंतजार तो नहीं अरे नहीं अम्मा, मैं सदके में वारी, मैं तो इंतजार कर रहा था आपका। आप आई बड़ी देर से, चलिए ना, आप भी चलिए, दोनों चलिए, चलिए। गाड़ी गलत पार्क कर रहे हैं आप, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, देखें। बेटा तुम दोनों हो, मैं यहीं गाड़ी में बैठी रहूंगी। जुदाइयां तो ये माना बड़ी कयामत है, रिफाकतों में भी दुख किस कदर है क्या कहें। बात सही है, आजकल रिफाकतों में इतना दुख है कि लोगों को तन्हाइयां पसंद आ गईं। चंद रोज हुए आपने बाजारों में आटे के डब्बे पर, अचार की शीशी पर, छालिया के पैकेट पर, अखबारों में, रिसालों पर, बरस के हर जगह चंद नाम और चंद तस्वीरें देखी हो। मेरे मेहमान हैं आज, समझ जरूर गए होंगे आप कि ये हैं कौन, और गलत समझे, ये वो नहीं है। इनका नाम है बेगम इश्तियाकुद्दीन सिद्दीकी और मोहतरम इश्तियाकुद्दीन सिद्दीकी। शायद